اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، ارے بیوقوف ہے وہ شخص، کچھ جانتا نہیں۔ ارے حال تم دیکھ لینا محشر کے دن، آقا کہیں گے میں اس کو پہچانتا نہیں، میں اس کو پہچانتا نہیں۔ بہت اچھے، آپ نے ماحول کو اچھا بنا دیا۔ اور پھر سے میں اس ادارہ جامعہ عائشہ البنات کے اندر علم حاصل کرنے والی طالبات کا جو پروگرام ہے، اس مقصد کی طرف رجوع ہوتے ہوئے جناب اس مدرسے کے بانی اور محترم حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب اور مفتی شکیم صاحب اور جتنے بھی معلمات ہیں ان سب کا میں استقبال و شکریہ ادا کرتے ہوئے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور عربی چہارم کے طالبہ جناب ریحانہ خاتون بنت جناب اسحاق میاں صاحبہ جو پرسولی کے رہنے والی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کا جو موضوع ہے ماں کی ممتا اور شفقت، آپ اس کے اوپر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ عربی چہارم کے اندر یہ طالبہ علم حاصل کر رہی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ریحانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن ماں دیکھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اس مقدس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کے آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ اس عظیم نعمت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کے بغیر گھر قبرستان کی طرح لگتی ہے، جس کی محبت کبھی بھی دکھلانے کے لیے نہیں ہوتا، جس کا پیار ہمیشہ سمندر کے مانند ہر وقت جوش میں رہتی ہے، جس کا پیار چٹان سے زیادہ مضبوط اور سمندر سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے، جس کا رشتہ ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے، جسے دنیا ماں کے نام سے جانتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی مقدس شہزادیوں، شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ماں باپ کو ڈانٹ پکڑنے اور ان کو اٹھ کر کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرے۔ اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اولاد کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو
वही जीनत है, वह हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। माँ की ममता और शफकत का उससे बड़ा सबूत क्या होगा? अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिहिल वलदी है, यानी जिस कदर माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी करना है। माँ के अज़मत के लिए बात काफी है कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने की बशारत दी है। माँ का अज़मत का पता उससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप को औलाद के लिए जन्नत व जहन्नम को करार दिया, यानी माँ बाप की इताअत करना जन्नत में जाने का और उनकी नाफरमानी करना जहन्नम में जाने का जरिया है। लेकिन अफसोस और अफसोस, जिस माँ ने औलाद को 9 महीने अपने पेट में रखकर बेपनाह मुशक्कतों से उसे जन्म दिया, जिस माँ ने सीने से लगाकर औलाद को दूध की शक्ल में उसे अपना खून पिलाया, जिस माँ ने औलाद की एक आवाज सुनकर अपना सारा काम काज बंद कर उसे तसल्ली देकर सुलाया, जिस माँ ने औलाद को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिस माँ ने औलाद को बोलना सिखाया, आज वही औलाद जवान होकर उनको राहत देने के बजाय उनको गालियाँ देते हैं, उनको खुश करने के बजाय उनका दिल नर्जिंदा करते हैं। आज ऐसे औलाद से मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, याद रखो, अगर आज तुम अपने वालिदैन के साथ बुरा बर्ताव करेगा, तो कल तुम्हारे औलाद भी तुम्हारे साथ जरूर बुरा बर्ताव करेंगे। ये अल्लाह ताला का हुजूर और दस्तूर भी यही है। अपनी जिंदगी माँ के नाम करती हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करती हूँ। अपनी जिंदगी माँ के नाम करती हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करती हूँ। जिन्होंने की जिंदगी औलाद बेनिसार, जिन्होंने की जिंदगी औलाद बेनिसार, जो है माए मैं उनको सलाम करती हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। और माँ औलाद से मोहब्बत करती है, लेकिन माँ के अलावा जो मोहब्बत करने वाले हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, लालच होती है, लेकिन माँ एक ऐसी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ, जिसका उन्वान है औसाफ़े मोमिन। इन आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि इन ईमान वालों ने यकीनन पूरा कामयाबी में हासिल कर ली है, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, यानी नमाज में जारी अजा को झुकाने के साथ साथ दिली अजली को झुकाए रखते हैं। वो मोमिन कामयाब है जो लागू चीजों से मुंह मोड़े हुए हैं, जिसका कौल व फेल न दुनिया का फायदा हो और न आखिरत का, ऐसे कौल व फेल से अपने आप को बचाए हुए हैं। सूरह रहमान में है कि जो जमीन पर आजीज़ी से चलते हैं, जो अपने रब का कहना मानते हैं, ज़कात अदा करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जो माल अता किया उसमें से खर्च करते हैं, ये आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, जो अपने रब की तरफ से सही रास्ते पर हैं, यही लोग हकीकत में मोमिन हैं। वो मोमिन कामयाब है जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत नहीं करते, जब वो किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों की पूरी निगरानी रखते हैं, पूरे नमाज को वक्त पे कायम करते हैं, किसी भी सिलसिला किसी भी कोताही सुस्ती नहीं करते। सूरह इनफाल में है कि मोमिन मान जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो उसके दिल कांप जाते हैं। हजरत ग्रामी मोमिन अपने वालिदैन का इंतहाई अदब एहतराम करने वाला, उनके सामने झुककर खड़ा होने वाला, उससे नरमी और धीमी में बात करने वाला, उनकी खुशी और राहत में भरपूर ख्याल रखने वाला, उनकी हक में रब के हुजूर में दुआ खैर करने वाला होता है। और मैं आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की पाबंद से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने बेटियों की तरबियत के मौजू पर मुख्तसर रोशनी डालना चाहती हूँ। उम्मीद कि आप गौर समाअत करेंगी। सामियात करीमात, बेटे या बेटियां दोनों अलग अजीम नामत है, औलाद जैसी भी है, ये अजीम दौलत है। बच्चा महक फूल है,
है, कल्ब व जिगर का सुरूर और सुकून है, घर की जीनत है, बुढ़ापे का सहारा है। मगर अगर किसी को औलाद की ज़रूरत समझ में नहीं आती तो जाकर उससे पूछे जो बेचारा औलाद की ज़रूरत से महरूम है। उस औरत की हालत पूछो जिसकी गोद अभी हरी नहीं हुई। मुआज़्ज़ज़ खातिन, बेटियों और लड़कियों का वजूद दुनिया को अपने खैर बरकत कमाई से, इसलिए कि बेटियों की तरबियत एक मुस्लिम है और दूसरी वजह यह है लड़कियों और औरतों ने नफ्स की पाकीज़गी का इन्हिसार है। बेटियां नफ्स व कल्ब की तस्कीन का अहम सामान है। बेटियां अल्लाह की रहमत और दुनिया की जीनत है। मगर बाद में आके बदनज़र लोग लड़कियों को जहमत और बोझ से सबर करते हैं, उनकी पैदाइश पर नाहवारी और नाराज़गी का इज़हार करते हैं। अल्लाह के फैसले करते हैं, सब का इज़हार करते हैं। अल्लाह की ज़रा कदर की नामत की नाकदरी करते हैं। और कुछ आमा को नदान और जादू की इसमें लोग अपनी बेटी की पैदाइश पर बीवी को तलाक दे देते हैं और कुछ अपनी बेटी का गला घोट देते हैं। या अल्लाह, ये बहुत बड़ा जुर्म है। याद रखो मुसलमानों, बच्चियों से नफरत के दौरे जाहिलियत की मुसाबत है, जाहिलियत का तरीका है। जैसा कि बहुत मारूफ है, जमाना जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा तौर पर कर दिया जाता था। बाप अपनी बेटी की पैदाइश से सख्त नाराज होता था। अल्लाहु अकबर, इस्लाम में रहमत का पैगाम लाया, बेटियों को जिंदगी और जान बख्शी। उसने बिन्ते हवा को मकाम को बुलंद किया, बेटियों की परवरिश को मुल्क जन्नत का अहम भाग करार दिया। बेटियों को जिंदा तौर पर करने पर सख्त नकेल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों की तरबियत पर खल्लत बताते हुए कहा कि जिसने दो बच्चियों की परवरिश पैदा कर की, यहाँ तक कि वो दोनों बलगत की उम्र तक पहुँच गई, तो वो वाली नजर पर रख कर क़यामत के दिन आएगा और मैं उस तरह होंगे। रावी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाए खाने के लिए करीब रहेंगे। जमाने भर में बढ़ गई घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ गई घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेटे अल्लाह की नेमत है और बेटियां ये तो हमारी नेकियां है। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत करें, उनकी सही तरबियत करें, उनको दिन वादत सिखाएं, उनको हकीर न समझे, कभी उनको अपने लिए आर और शर्म न समझे। और हमेशा याद रखें कि बच्चों से ज्यादा तरबियत और बच्चों से ज्यादा सवाब और फजीलत बच्ची और बेटियों की तरबियत में बेटियां बेटों से ज्यादा कारगर साबित हुई है। इन्हीं चंद कलिमात में मैं एक तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को बेटियों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुए अल्बिदों की तालिबा जो जीतपुर के रहने वाली शम्मा बिन्ते जनाब महफूज साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और शब कदर जो रमजान मुबारक के अंदर एक रात आती है उससे शब कदर के मुताबिक अपनी तकरीर को पेश करें। शम्मा बिन्ते जनाब महफूज साहिबा जी। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है अम्मा बाद। यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रईसुल हफ़्लतिल मुबज्जल वल हाज़िरूनल किराम। कल तलौतु आनिफन सूरतन मिनल कुरानिल करीम वहिय तदुल्लु अला अहमियति लैलतिल क़द्र व फ़ज़लिहा व तदुल्लु ख़ुतबतिल यौम हौलहा इंशाअल्लाहु तआला। अर्जू मिनकुम अन तस्तमिऊ कलिमाति बिइज़्नि वाइया व अलसीनतु ज़ाकिरा या अय्युहल मुस्तमिऊनल किराम। इन्न मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना इन्नहु बाअसन फ़िल उम्मति मुहम्मदिय्या अला साहिबिहा अल्फ़ अल्फ़ तहिय्यतुस सलाम अल्लती हिय खैरुल उम्ममी व अकरमना बिकिताबिहिल मुक़द्दस व अअताना नाफ़िलतल कुरानिल करीम अल्लज़ी हुव मनहज व दस्तूरुल हयातिल इंसानिया।
ولا يزال يوم القيامة. فأمرنا بامتثال تلك الأوامر والشريع التي وجاء فيه والعمل بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. معلوم أيها الإخوان إن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بشهر رمضان المبارك وجعل فيه الليلة المباركة هي خير من ألف الشهر. أما هذا من فضل الله ونعمه ومننه وما أسد أولئك الرجال سادة وإخوتي. كان من عادات الصحابة ودعائهم في هذه الليلة المباركة إنهم كانوا يعبدون فيها بصفة خاصة وكانت حياتهم مسورة من البدعات والأوهام فلم يكن يهودهم متسع لأن يضلهم عن الطريق سبيا لأنهم يعلمون بعدما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة وبدعة وكل بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار. وفقني الله وإياكم تلاوة القرآن والعمل بما فيه من الرسالة والشرعي والأحكام وشرفنا بليلة القدر التي هي خير من ألف الشهر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات ہیں ان کے سروں پر جا رہا ہے کہ درجہ حفظ کے اندر بھی طالبہ موجود ہے جو قرآن شریف کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہی ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ادارے کے تمام کمیٹی حضرات کو. جناب عزیزہ رابعہ بنت ہاشم صاحبہ جو درجہ حفظ کی طالبہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
माशाअल्लाह पर इस बच्चे ने जो तकरीर पेश किया वाकई ये किसी बड़े मुकर्रिर से कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मकतबे अव्वल में पढ़ने वाले और इस मदरसे के बानी और मोहतमिम हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब जो खुद करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और आपके इलाके के मशहूर मारूफ और बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी साहबजादी जनाब आबिदा खातून से मैं गुजारिश करता हूँ जो पूरे इंडिया के रहने वाली है कि आप तशरीफ लाएं और खाने पीने के आदाब के मुताबिक अपनी बात को बयान करें। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, एक बढ़िया वस्तानी के तरीके से हमें दर्श दे रही थी कि हमें कैसा खाना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इल्म में बरकत अता फरमाए। और एक्शन पेश करने के लिए जो बच्चियां जिनको खुश आमदेद के उन्वान पर उसको मुकाबले के तौर पर दिया गया है, मैं बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने एक्शन जो चीजें वो पेश करवाएं। और थोड़ा सा खुश आमदी खुश आमदी खुश आमदी खुश आमदी ए तालिबे इल्म व यकीन खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन नाज़रीन खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन मरहबा ए तालिबे क़ल्ब व ज़का अहलन व सहलन मरहबा ए तालिबे इल्म व ज़का रोशन रहे तेरी जबी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन नाज़रीन खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन नाज़रीन खुश आमदी खुश आमदी ये अल्फसानी की फज़ा अदबा फरी ओ खुशनुमा ये अल्फसानी की फज़ा अदबा फरी ओ खुशनुमा क्या आसमां है ये ज़मीन खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन नाज़रीन खुश आमदी खुश आमदी
आज़मी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी बच्चों को देखो जा बजा हर एक की इस्लामी अदा बच्चों को देखो जा बजा हर एक की इस्लामी अदा हर बात सारी दिल नशी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी ये अल्फसानी की फजा खुशनुमा ये अल्फसानी की फजा अदबाफरी ओ खुशनुमा क्या आसमां है ये ज़मीं खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी है शुक्र तेरी ज़ात का कुरान की हर बात का है शुक्र तेरी ज़ात का कुरान की हर बात का हर हर्फ है तुझे कमी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन काफरी खुश आमदी खुश आमदी। अस्सलाम वालेकुम। और बेहतरीन माहौल और बेहतरीन प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और वाकई आपकी भी कुर्बानियाँ हैं कि इतने बड़े इदारे में और इतने बड़े जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में इन बच्चों ने जो खुशामदीद का प्रोग्राम पेश किया है वो वाकई काबिल मुबारकबाद है और ये सारी बच्चियाँ तारीफ के मुस्तहिक है कि उन बच्चियों ने इतने कम उम्र में इतने बेहतरीन प्रोग्राम को पेश किया। आप लोगों को समझ में बात आ रही होगी कि इस इदारे में तालीम और तरबियत रहने सहने का जो इंतजामात है और जिसके लिए हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब उनके जो साहबजादे लोग हैं और उनके जो मालिमात हैं जो खिदमत अंजाम दे रही है वो वाकई काबिल मुतमईन है और उन पर इत्मीनान किया जा सकता है। इसलिए आप अपने बच्चियों को और अपने जो रिश्तेदार हैं दोस्त अहबाब की बच्चियों को इस इदारे में ज़रूर तालीम हासिल दिलवाए ताकि इन बच्चियों का दिन और दुनियावी दोनों चीज़ समझ सके। अब गुजारिश है कि आपको जहाँ जगह मिल जाए आप तशरीफ रखें। जो मर्द हजरात है इधर तशरीफ ले जाए, औरतें हैं वो इधर जगह मौजूद है हमारे दाहिने साइड में जो जगह में खड़े बैठ जाए वो। अब मैं फिर आपके सामने एक मशहूर मारूफ शायर जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी नातगोई का चर्चा पूरे हिंदू नेपाल के अंदर है, शहंशाह तरन्नुम जिनका लक़ब मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, भोजपुरी भी बेहतरीन पढ़ते हैं और उर्दू भी बेहतरीन पढ़ते हैं, जनाब शायर इस्लाम
करीमुल्लाह सल्लल्लाहु अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत का हसीन गुलदस्ता पेश करें। माशाअल्लाह माहौल बहुत बेहतरीन है, आप अच्छा सुन रहे हैं। कारी साहब को आप बेहतरीन सुने, अल्लाह जज़ाए खैर दे।